والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري. صدر جی وقار مشفق علماء کرام بزرگوں و دوستوں، سالانہ جمعیت دلی جمعیت اہل حدیث سپول کے کانفرنس بعنوان بیان امن کے تحت مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے غیر شرعی نکاح امن کی راہ میں رکاوٹ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اس کے بعد بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر فرماتا ہے تو تم ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو تین تین چار چار سے، لیکن اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اور حدیث میں ہے کہ سن لو اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میں تم لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں. جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ تلاوت کردہ آیت اور پڑھی گئی حدیث کا ترجمہ. اب آئیے یہ شادی بیاہ نکاح عقد بہت سارے الفاظ کے ساتھ ہم اس کو جانتے ہیں. یہ ایک پاکیزہ بندھن ہے جس بندھن کے ذریعے سے ایک اجنبی انسان ایک پرایا انسان اپنا بن جاتا ہے اور ایک محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، امن و سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اس نکاح کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے اور فواحش و منکرات سے مکمل طور پر بچا بھی جاتا ہے. اور بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ. اگر انسان شادی کر لیتا ہے اس کی شہوت مان پڑ جاتی ہے اور پھر دوسرے اجنبیہ عورت کی جانب اس کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے. یہ نکاح کرنا نبیوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام نے کب شادی کیوں نہیں کی؟ سنت سے اعراض، گویا کہ انہوں نے سنت سے اعراض کیا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کم ہے، بہت ہی محدود وقت ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ نکاح کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس پر ابھارا ہے اور کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے شادی کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اس لیے کہ یہ نکاح انسان کی نگاہ کو نیچے رکھنے والا ہے اور اس میں شرمگاہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ومن لم يستطع، لیکن جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے، نہ نفقہ کی طاقت
शादी एक पाकीज़ा बंधन है। वहीं पर अगर इस्लाम के खिलाफ अगर निकाह किया जाए तो यही निकाह गैर शरई निकाह कहलाता है, जो हमारे उलमाए किराम मुझे ये मौजू दे करके उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं कि आप बताएं कि वो कौन कौन से निकाह है जो गैर शरई निकाह। सबसे पहले टू द पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा मुतव्वल मौजू है और उसको वक्त दरकार है, मकाले की शक्ल में मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं हाजिर कर दूंगा। मैं सिर्फ पॉइंट के तहत ये बताना चाहता हूँ कि वो शादी जिसमें लेन देन का रिवाज पाया जाता है, नकदी लेन देन, माल का लेन देन, इसी तरीके से गाड़ी का लेन देन, दूसरी किसी चीजों का लेन देन, जिसको मजबूर करके लिया जाता है और ये शर्त भी लगाई जाती है, ये शर्त लगाई जाती है कि अगर ये दोगे तो फिर शादी होगी, अगर नहीं दोगे तो शादी नहीं हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शर्त जो शर्त किताबुल्लाह में नहीं है वो शर्त बातिल है और ऐसी शर्त का कोई एतबार शरीयत इस्लामिया के अंदर नहीं है। अगर आपने अपाचे की शर्त लगा दी कि अपाचे गाड़ी चाहिए मुझे, उसके बाद शादी होगी, या शादी कर लेने के बाद एक दामाद अपने ससुर को बुरी तरह परेशान करते हैं, मुझे ये बॉक्स पलंग चाहिए या मुझे 1.5 लाख की गाड़ी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने अंदर दम है तो कमा करके लो, अपने अंदर कुव्वत है तो रिस्क हराम के जरिए से गाड़ी खरीदो, पलंग और ये बॉक्स पलंग खरीद करके लो। तुम ऐसी शर्त क्यों लगाते हो, तुम मजबूर क्यों करते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसी शर्त आ जाती है जो किताबुल्लाह के खिलाफ हुआ करती है तो गार्जियन भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरे के पास हाथ फैलाते हैं, मेरी बच्ची की शादी है और मैं दहेज की वजह से शादी नहीं ले पाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ। सूद पर रकम लेने के लिए मजबूर हो जाता है वो इंसान और शादी मजबूरन करता है। लेकिन जो गार्जियन बावजूद इसके शादी नहीं कर पाते तो इसके भयानक करता है कि समाज के अंदर मुरतब होते हैं और असरात मुरतब होते हैं। कभी कभी लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं, जहर पी लेती हैं, कभी कभी ये दहेज के ना दे पाने की वजह से लड़कियों को तहत कर दी जाती है, जिंदा मार दी जाती है। हमारे समाज में अब ये चीज होने लगी है मेरे भाइयों। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि वो दस्तूर कहाँ गया, वो रिवाज कहाँ गया जो सिर्फ बैलगाड़ी पर लोग जाते थे और शादी निकाह पढ़ा करके आ जाते थे बताशा खा करके। और आज का निकाह, आज के धूमधाम, आज के ढोलक, आज की गाड़ियां देखो, ये सारे गैर शरई रसूम की अदायगी के साथ निकाह करना है। और जब आप ऐसी शादी करेंगे तो समाज से आपका अमन छीन जाएगा, ये सुकून नहीं रहेगा, न वालिदैन के पास सुकून होगा, न समाज के अंदर दरमियान सुकून होगा, ये अमन खत्म हो जाएगा। जो इस्लाम अमन का कहवाना है, इस्लाम सिर्फ अमन का ही पैगाम देता है, वो अमन समाज से खत्म हो जाता है। जब किसी की लाडली बच्ची, जो माँ अपनी बेटी को 9 महीने तक अपने पेट में रख करके बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ शादी कराई थी, उसको दहेज के चलते तहरीर कर दी जाती है, रात के सन्नाटे में उसको मार कर बागीचे में फुलवारी में डाल दी जाती है। ये गैर शरई रसूम के साथ शर्त लगा करके शादी देना और शादी करना, ये गैर शरई निकाह है मेरे भाइयों। और इससे बचने की हम तमाम लोगों को जरूरत है। बारात का क्या कहना, बारात तो माशाअल्लाह बारात खूब सजती है, खूब सजती है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की शादी हो जाती है, आपके कपड़े में, आपके जिस्म में जर्दी रंग दिखाई देती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अब्दुल रहमान तुम्हारे जिस्म पर ये जर्द रंग कैसा है? हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से शादी की है। आपने फरमाया तुमने महर कितना दिया? हजरत अब्दुल रहमान ने कहा कि मैंने सोने की एक गुठली के वजन के बराबर सोना दे करके मैंने शादी की है। आपने फरमाया कि तुम वलीमा करो, अगर से एक बकरी ही क्यों ना। शादी हो जाती है, अल्लाह के नबी को पता नहीं चलता
अल्लाह के नबी को पता नहीं चलता और आपकी शादी होती है तो पूरे इलाके में ढोल बज जाते हैं। ऐसा क्यों? मेरे भाइयों, ये गैर शरई शादियां हैं, इनसे बचने की जरूरत है। इसके बाद खत्म हो गया, शुरू करते हैं तो खत्म होते हैं ना। उसके बाद आइए सिर्फ पॉइंट में गिरा बेला वाली अगर आप निकाह करवाते हैं अपनी बच्चियों का, ये शादी हराम है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं और 2 मिनट का, अगर बहुत सारे हमारे समाज की बच्चियां अपने वालिदैन से बगावत करके राय फरार इख्तियार करती है और कहीं जाकर के चुपके से शादी कर लेती है बेला वाली, वालिदैन को कोई पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट मैरिज कर लिया जाता है, ये शादी हराम है, ये गैर शरई शादी है और इस पर बुरे असरात भी मुरतब होते हैं। समाज के अंदर वो तमाम लड़कियों पर एक घिनौनी छाप पड़ जाती है और आपका समाज बेचैनी का आपके समाज के अंदर बेचैनी का एक समा कायम हो जाता है। उसके बाद एक निकाह शिगार कहलाता है, जो हमारे समाज में भी हुआ करता है। अदला बदला का निकाह, आम फराम लफ्ज में वट्टा सत्ता का निकाह, इस शर्त पर कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करता हूँ, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो और नाते की वजाहत के मुताबिक उसमें महर ना हो, ये निकाह शिगार है, ये हराम है। लेकिन अगर महर भी हो और इस तरह की शर्त वाली शादी हो और महर भी मुकर्रर हो, ये भी निकाह शिगार है और ये हराम है। अल्लामा इब्न बाज़ ने खुले तौर पर यह फतवा सादिर करवाया और दलील भी नस्स भी मौजूद है जय्यद सनद के साथ कि हज़रत अमीर मुआविया के पास अमीर मदीना ने खत लिखा कि यहाँ पर 2 इंसान ने शादी कर ली, निकाह शिगार किया, दोनों ने महर भी मुकर्रर किया। अमीर मुआविया ने उस खत के जवाब में लिखा कि उस दोनों के निकाह में तफरीक डाल दो, यानी फस्ख करा दो, इसलिए कि यही वो शिगार है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। पता चला कि अगर महर भी है तो फिर भी ये निकाह शिगार ही है। अगर कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है, ये सबसे बड़ा अलमिया है, पूरी कौम को शर्मसार कर देने वाला हादसा है और ये वाकया है। अगर ऐसा वाकया आपके समाज में होता है तो उसके साथ सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है। एक तो ये है कि वो गैर मुस्लिम समाज में जाती है और गैर इस्लामी तरीके से शादियां रचाती है, ये गैर इस्लामी शादी है। मेरे भाइयों, कुरान की सख्त मुखालिफत है, हदीस की सख्त मुखालिफत है। मैं दलील नहीं बयान कर सकता अभी, चूंकि नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट आपके सामने ये रख दिया कि आपकी बच्चियां अगर गैर मुस्लिम के साथ भागकर शादी कर लेती है तो ये शादी हराम है, ये शादी नाजायज है, गैर शरई शादी है और इसके नतीजे में पूरी कौम एक डिप्रेशन की शिकार हो जाती है कि हमें ललकारा गया है, हमारे इस्लाम को ललकारा गया, हमारे धर्म और मजहब को ललकारा गया है। पूरी कौम ये डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। मेरे भाइयों, अमन खत्म हो जाता है, इससे बचने की जरूरत है। अगर कोई जानिया हामिला है तो उस हालत में उसका निकाह भी हराम है, ये गैर शरई शादी है। अगर जानिया हामिला है, पेट में बच्चा है तो उसकी शादी हराम है। अगर उस जानी ही का बच्चा है फिर भी हराम है। आप फतवा देखें, शेख सुलेमान रोहिणी का फतवा देखें, अगर यकीन हो जाए कि बच्चा उसी जानी का है फिर भी उसके साथ हमल की हालत में निकाह करना हराम है। अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारक
وسلام علی المرسلین والحمد للہ